السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اسلام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیا انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ حیدرآباد میں گنیش مورتیوں کا نمرجن جاری، خیرتباد بڑے گنیش کا نمرجن مکمل، پولیس کا وسیع تر بندوبست، جلوسیوں بشمول پولیس ملازمین کا رقص، بالاپور لڈو کا 35 لاکھ روپے مہرراج۔ میری سیاسی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، کویتا کے ریمارک دوسری سیاسی جماعتوں کے الزامات کے مماثل، سابق وزیر ہریش راؤ کا رد عمل، پارٹی سربراہ KCR سے فارم ہاؤس پر طویل ملاقات۔ میرچل میں ڈرگس فیکٹری کا پردہ فاش، MD ڈرگس کمپنی پر ممبئی تھانے کرائم برانچ کا دھاوا، 12,000 کروڑ روپے کے ڈرگس ضبط۔ اور آندھرا پردیش کے انکاپلی میں وارڈن پر ہتھوڑی سے حملے کے بعد فرار ہونے والے 2 قیدی گرفتار، وارڈن ہاسپٹل میں زیر علاج۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔
शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन पुरअमन तौर पर जारी है। मरकजी जुलूस के दौरान मर्द व ख़वातीन बशमूल पुलिस मुलाजिमीन भी रक़्स करते हुए देखे गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महदूद काफ़िले के साथ अचानक टैंक बंड पहुंचकर निमज्जन के इंतजामात का जायजा लिया। इस बार बालापुर का लड्डू 35 लाख रुपए में हर्राज हुआ है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। वसीतर पुलिस बंदोबस्त के दरमियान शहर में गणेश मूर्तियों का निमज्जन किया जा रहा है। खैरताबाद के बड़े गणेश का निमज्जन हफ्ते की दोपहर तक कर दिया गया था। क्रेन नंबर 4 के पास बड़े गणेश का निमज्जन किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गणेश की मूर्तियां हुसैन सागर की सिमत रवा हैं। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के अलावा दूसरे इलाकों में गणेश की मूर्तियों के साथ ख़वातीन की भी बड़ी तादाद देखी गई। जुलूसी रक़्स करते हुए नजर आए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अचानक विसर्जन जुलूस के अमल का जायजा लिया। हफ्ते के दिन शाम 4 बजे के करीब वजीर आला महदूद गाड़ियों के साथ सादा तरीके से टैंक बंड पहुंचे। किसी भी किस्म की ट्रैफिक क्लियरेंस के बगैर आम आदमी की तरह अचानक विसर्जन अमल का जायजा लेते हुए वजीर आला ने आवाम से बात की और मालूम किया कि विसर्जन जुलूस के दौरान कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। ड्रोन के जरिए भी जुलूस पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ सरूनगर तालाब और दूसरे झीलों में भी मूर्तियों का निमज्जन किया जा रहा है। चार मीनार के पास बीजेपी के एमपी ईटला राजेंद्र ने जुलूस का इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था कि यह जुलूस हैदराबाद की रिवायत है और इसे बरकरार रखना चाहिए। जुलूस के दौरान आरएसएस के कारकुन भी लाठियों के साथ नजर आए। सैफाबाद एसीपी संजय को जुलूस में साथी मुलाजिमिन के साथ रक्स करते हुए देखा गया। हैदराबाद में तकरीबन 30,000 पुलिस मुलाजमीन बशमूल 3,200 ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। 20,000 जीएचएमसी का अमला भी खिदमात अंजाम दे रहा है। 1,000 से जायद सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल रूम से मरबूत किए गए हैं। ख़वातीन की सलामती के लिए शी टीम्स की भी खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं। हैदराबाद के हुदूद में 11,000 गणेश की मूर्तियों पर QR कोड लगाए गए हैं। दूसरी तरफ बालापुर गणेश की मूर्ति के साथ गाड़ियों का एक तवील काफिला देखा गया। पुलिस के तरफ से रोके जाने पर जुलूसियों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। बताया जाता है कि सिर्फ 4 गाड़ियों की इजाज़त दी गई थी, लेकिन गाड़ियों की एक बड़ी तादाद को देखते हुए पुलिस ने इन्हें रोक दिया। बाद में पुलिस ने गाड़ियों को रोककर जुलूस को रवाना किया। बालापुर गणेश के साथ डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा को भी देखा गया। डीसीपी साउथ जोन की तरफ से गणेश मूर्ति पर फूल माला डाली गई। दूसरे पुलिस मुलाजिमीन भी नारियल फोड़ते हुए देखे गए। हैदराबाद बालापुर का लड्डू इस साल 35 लाख रुपए में हर्राज हुआ। करमन घाट के लिंगाला शरद गौड़ ने इस लड्डू को 35 लाख की बोली लगाकर खरीदा। गुज़िश्ता साल यह लड्डू 30 लाख रुपए में हर्राज हुआ था, लेकिन इस बार इसमें 5 लाख का इजाफा हुआ है। लिंगाला शरद लड्डू पाने पर जोश में देखे गए।
बालापुर गणेश उत्सव कमेटी की तरफ से इन्हें तहनीत भी पेश की गई। चारमीनार के पास पुलिस को चौकस देखा गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की निगरानी में भी इंतजामात किए गए। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा भी चारमीनार के पास देखी गई। चारमीनार के पास कायम किए गए स्टेज की भी तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड को भी तलाशी में शामिल किया गया था। चारमीनार के मंदिर के पास भी पुलिस को चौकस देखा गया। पुराने शहर से लेकर हुसैन सागर तक मुख्तलिफ मुकामात पर खातून घुड़सवार पुलिस मुलाजमीन देखी गई हैं। हाल ही में सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की निगरानी में इन खातून पुलिस मुलाजमीन ने घुड़सवारी की तरबियत हासिल की है। बैरूनी दौरे की वापसी के बाद हरीश राव ने इरावली जाकर केसीआर से मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। हरीश राव इरावली फार्म हाउस गए और हरीश राव ने खुसूसी तौर पर केसीआर से तफसीली मुलाकात की। इस वक्त केसीआर के हमराह पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। अंदरून असम्बली में पेश आने वाली सियासी तब्दीलियों, किसानों के मसाइल पर मरकजी हुकूमत की लापरवाही, MLAs की खरीदो फरोख्त पर बीजेपी की रविश वगैरह मौज़ूआत पर बातचीत हुई। कविता की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर भी बातचीत हुई। BRS पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तलात के मुताबिक हरीश राव और केसीआर की यह मुलाकात और बातचीत काफ़ी तवील वक्त तक जारी रही। बाद में हरीश राव ने कविता के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उनकी सियासी जिंदगी एक खुली किताब है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम में उनकी संजीदगी सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुझ पर और पार्टी पर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। क्यों लगाए गए, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगाए गए, इन इल्ज़ामात को मैं उनकी बसीरत पर छोड़ रहा हूं। केसीआर ने गुज़िश्ता 10 बरसों में जो एक एक निज़ाम तामीर किया है, इसे रेवंत रेड्डी नाकाम बना रहे हैं। तेलंगाना रियासत में एक तरफ किसान यूरिया की कमी से परेशान हैं। ऐसे हालात में पस्त दर्जे की सियासत अच्छी बात नहीं है। నా 25 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం తెలంగాణ ప్రజల ముందు ఒక తెరిచిన పుస్తకం లాంటిది. సరే, గత కొంతకాలంగా మా పార్టీ పైన అదేవిధంగా నా పైన కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలనే వారు కూడా చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలు వారు ఎందుకు చేశారో అది వారి విజ్ఞతకే నేను వదిలేస్తున్నాను. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గత 2.5 దశాబ్దాల కాలంగా ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తగా రాష్ట్ర సాధనలో, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో నేను చూపిన నిబద్ధత, నా పాత్ర అందరికీ తెలిసినటువంటిది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎరువులు దొరకక ఒకవైపు రైతులు గోసపడతా ఉన్నారు, మరొక వైపు వరద ప్రాంతాల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు దశాబ్ద కాలం ఎంతో కష్టపడి నిర్మించిన వ్యవస్థలను, ఒక్కొక్క వ్యవస్థను ఉద్దేశపూర్వకంగా महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर की हैसियत से 1 साल मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने हफ्ते के दिन वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर PCC सदर महेश कुमार गौड़ को वजीर आला ने मुबारकबाद दी और उनकी शाल पोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद, जो हैदराबाद आए थे, तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। डॉक्टर ने CBI डायरेक्टर की सेहत बेहतर बताई है। प्रवीण सूद आज सुबह श्रीसैलम से हैदराबाद पहुंचे थे। बताया जाता है कि प्रवीण सूद शख्सी दौरे पर हैदराबाद आए थे। इस दौरान हैदराबाद में इदारे के ओहदेदारों से भी बातचीत की थी। हुकूमत तेलंगाना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात CBI के सुपुर्द करने का ऐलान किया था और इसी तनाजुर में CBI डायरेक्टर के दौरे हैदराबाद को लेकर काफी तवज्जो दी जा रही थी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
निम्स पहुंचकर वहां लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत ज़ेर इलाज 3 मरीजों को इलाज की तकमील के बाद डिस्चार्ज करवाया। गोलकुंडा, मुस्तईदपुरा, अलीयाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुख्तलिफ मरीज लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत निम्स में ज़ेर इलाज थे। उनका इलाज मुकम्मल हो गया और डिस्चार्ज के बावजूद हुकूमत की जानिब से रकम की अदम अदायगी पर उन्हें रोक लिया गया था। अलीयाबाद के साकिन 64 साला चिंताला शंकर व दीगर मरीजों के रिश्तेदारों ने सदर मजलिस को इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने मिर्जा रहमत बेग को निम्स रवाना किया। उन्होंने निम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर भेरापिया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चरण राज, इंतजामिया के अहदेदार और ड्यूटी डॉक्टर से भी मुलाकातें की। निम्स इंतजामिया ने बताया कि आरोग्यश्री के तहत हुकूमत से 100 करोड़ रुपए वसूल तलब हैं। सीएम रिलीफ के तहत हुकूमत 80 करोड़ रुपए बाकी है। निम्स के जिम्मेदारों ने रुकन कौंसिल से कहा कि वो सदर मजलिस को निम्स की इन मसाइल से वाकिफ करवाएं। रुकन कौंसिल ने इन तीनों मरीजों के लिए दरकार खानापुरी मुकम्मल करते हुए उन्हें घर रवाना किया। इन मरीजों और उनके अरकान खानदान ने सदर मजलिस और रुकन कौंसिल दोनों का शुक्रिया अदा किया। करीमनगर टाउन के राजीव चौक में गणेश विसर्जन के मौके पर मजलिस के जिला कायद गुलाम अहमद हुसैन की जानिब से हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैंप लगाया गया। जिला एसपी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क में आए दिन मजहबी मुनाफरत के माहौल में इस मिसाली खिदमत की जिला एसपी ने सताइश की। भाई भाई के बैनर तले इस प्लेटफॉर्म से 30,000 से जायद मिनरल वाटर बोतलें, गुलाब का पानी, लस्सी, बटर मिल्क, बादाम मिल्क मुफ्त तकसीम किया गया। इस मौके पर पुलिस के दीगर आला अहदेदार, मजलिस के मुकामी कायदीन, गणेश मंडलियों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। खुर्बे इलाही इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मुमकिन है। खतीब व इमाम मस्जिद हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने हाशिमाबाद में जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़सीम असनाद से खिताब करते हुए इन कलमात का इज़हार किया। उन्होंने नई नस्लों को हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ करवाने, उनके दरमियान अदबी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाने को खुश आइंद करार दिया। तेलंगाना यदाद्री भुवनगिरी जिले में जुमा की रात निमज्जन के दौरान गणेश मूर्ति क्रेन से नीचे गिर गई। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस बार गणेश त्यौहार के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए हादसों में जानी नुकसानात भी हुए हैं। आंध्र प्रदेश के उनकापल्ली जिले की चेदावरम सब जेल से वार्डन पर हमले के बाद फरार होने वाले 2 कैदियों को विशाखा टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक निकारवी कुमार और बेजवाडारा मौजू जेल के चूल्हे में काम कर रहे थे। वार्डन राजू पर हथौड़ी से हमला कर दिया और उनके पास से चाबी छीन कर जेल से फरार हो गए थे। इस वाक़े के फौरी बाद मुकामी पुलिस हरकत में आ गई थी। हफ्ते की दोपहर ये इत्तला आई कि कैदियों को विशाखापट्टनम टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। कैदियों के हमले में जख्मी जेल वार्डन को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मेरचल जिले में ड्रग्स की तैयारी का पर्दाफाश हुआ है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस की तरफ से धावा किया गया। तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। बताया जाता है कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एमडी ड्रग्स पर धावा किया गया। पता चला है कि 35,000 लीटर केमिकल्स को जब्त किया गया है। बताया जाता है कि एमडी ड्रग्स मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जा रही थी। 13 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बरलागोड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद की खुबा कॉलोनी के एक मकान में सरके की वारदात पेश आई है। जुमे की रात को साहब खाना ससुराल गए हुए थे। घर लौटने पर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। घर से 2.5 तोले के तलाई जेवरात, 50 तोला चांदी के जेवरात और 10,000 रुपए की नकद रकम का सरका कर लिया गया। इतला मिलने पर पुलिस मुतासरा मकान पहुंची। क्लॉस टीम को भी तलब कर लिया गया।
पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन, हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी, खैरताबाद बड़े गणेश का निमज्जन मुकम्मल। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, जुलूसियों बशमूल पुलिस मुलाजमीन का रक्स। बालापुर लड्डू का 35 लाख रुपए में हर्राज। मेरी सियासी जिंदगी एक खुली किताब है, कविता के रिमार्क दूसरी सियासी जमातों के इल्जामात के मुमासिल। साबिक वजीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल, पार्टी सरबराह KCR से फार्म हाउस पर तवील मुलाकात। मेरठल में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, MD ड्रग्स कंपनी पर मुंबई थाने क्राइम ब्रांच का धावा। 12,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त। और आंध्र प्रदेश के अंकपल्ली में वार्डन पर हथौड़ी से हमले के बाद फरार होने वाले 2 कैदी गिरफ्तार। वार्डन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर ख़िताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।